Now see, all these M0 to M7, these are called mean terms. What is called them? Mean terms. MIN term, mean terms from M0 to M7. Okay. But we are having only the live terms is active term is M1, M2, M3 and M5. Correct. Is there any doubt till now? Now we will go for standard soft form, and that is also we have discussed in our last class. Okay, but I have summarized again here for your betterment. ये प्रॉब्लम है आफ्टर 40 मिनट्स काट जाते हैं, ये तो हम लोग का ये प्रॉब्लम है। तो स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म है। ओके, तो पहले जो मैं लिखा था यहाँ पे, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो है ये सॉफ्ट फॉर्म है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, ए बार बी प्लस बी बी बार सी, ये सॉफ्ट फॉर्म है, लेकिन ये स्टैंडर्ड सॉफ्ट नहीं है। क्यों? Why it is not so? Because है क्या नहीं। So यहाँ पे this is not called the standard soft form because how many variables are there? A B C है, लेकिन यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे B बार C में A नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड तब होगा जब each and every term containing all the variable. Please listen carefully, my students. स्टैंडर्ड सब तब होगा जब each and every individual product term containing all the variables, then only it is called standard soft form or standard canonical form. So see here, I've written all the things. You just go through what I told you, mention here. All the things are written here. Okay. Here each product term contains all the variables of the function, either in complemented or uncomplemented form. Okay. So I have written all the things. See here, A bar B plus B bar C. Again, I have taken the same problem. That is not the standard form because यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे B नहीं है, A नहीं है. Now we have to include the absent variables here. So यहाँ पे क्या absent है? C है. So that's why we are writing here A bar B into C plus C bar. Because you people know that C plus C bar is equal to 1. So A bar B into 1. So you are nothing writing new. यहाँ पे क्या होगा? B bar C है into 1 है. 1 का मतलब we can write A plus A bar. Now see, ये जो टर्म हमको मिल गया, देखो each and every टर्म में A B C है, either uncomplimented फॉर्म में है और complemented फॉर्म में है. That is not issue. That is not an issue. But you have to have all the variables. You have to have all the variables in each and every product term. So this is also product term, this is also one product, this is also one product, and this is also one product term. But individual product term having all the variables here. देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, all the product terms having all the variables. Okay, so that's why now this term, this expression is called standard
sum of product. Correct. Now see, and you people know that already I told you, but again I am telling you, each an individual term is called mean term. This is one mean term, this is one mean term, this is one mean term, this is one mean term. And clearly I have mentioned here for your understanding. This is mean term and I have written this is M1. This is mean term, I have written M2. This is also one mean term, I have written M3. This is also one mean term and I have written M5. Now ये क्या हो जाएगा? F of ABC is equal to M1 plus M2 plus M3 plus M5 होगा कि नहीं? Is there any doubt? Anybody have any doubt till now? Now see, we can write down now. सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है सर, हाँ? सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, इसका वहाँ इसका यहाँ लिखा हुआ है। जैसे आप इनटू करते हैं तो उसका इनटू उसके नीचे नहीं लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा हुआ है। बोलो बोलो, मैं सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, बोलो। सर बोल रहे हैं कि जो हम लोग इनटू किए मल्टीप्लाई किए हैं, हाँ। जो टर्म मल्टीप्लाई करके जो लास्ट टर्म जो आया है M1 M2 M3 ये वाला वो सीक्वेंस में नहीं है। हाँ सीक्वेंस सर, में नहीं है वो ना, नहीं ऊपर से सीक्वेंस से रखना होगा। हाँ सर, वो सीक्वेंस में है नहीं सर। हाँ सीक्वेंस में रखो कि ये देखो सीक्वेंस में है, देखो कैसे सीक्वेंस में है, देखो ये क्यों हम लोग M1 लिखे हैं। देखो ये क्या होगा, 0 0 1 है, 0 0 1 है, इसलिए तो 0 है वो, इसलिए तो ये बार है। सो 0 0 1 मीन्स क्या है, डेसिमल में 1 है, इसलिए M1। ये क्या है, 0 1 0 0 1 0 मतलब क्या है, बोलो। 0 1 0 का मतलब 2 है, इसलिए M2 है। 0 1 1 मतलब क्या है, 3 है, इसलिए M3 है। 1 0 1 का मतलब क्या है, 5 है, इसलिए M5 है। तुम यहाँ के लिख के इधर इधर के इधर घुमा के और M1 M2 M3 लिखो, M5 लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए तुमको ठीक तरीके से लिखना होगा। यू हैव टू मेंटेन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, नहीं ये टर्म गलत हो जाएगा, ये वैल्यू M3 M1 हो जाएगा, M2 M5 हो जाएगा, M5 M1 हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट इन ए correct way, correct fashion. Okay, so now see, this is M1, so you can write down f of ABC is equal to M1 plus M2 plus M3 plus M4 M5. So that's why you can write here f of ABC is equal to M1 plus M2 plus M3 and M5, and all these are M1 M2 M3 and M5, all these are producing high output, all the terms producing high output. Okay, so that's why we are considering all these things. So those are present in the expression, all are basically representing high value. Okay, this is also representing high value, this is also representing high value, this is also representing high value, this is also representing high value. And it is obvious from the truth table. If you go back to the truth table, you will get there all these terms are getting high value in the functions. Few moments ago I have shown you. Go to the truth table. कहाँ truth table है, मैं यहाँ पे देखो, M1 M2 M3 and M5, those are getting only high values. Okay, so only the high values are including, and those are active mean terms. So that's why f of ABC is equal to M1 plus M2 plus M3 plus M5. Now we can write it is in the simplified form. Now summation of our M whole into 1, 2, 3, 5. This is the representation technique you have to understand. And when you are going to solve any sort of problem, you will get there this sort of expressions. Okay, you will get f of ABC is equal to summation over M 1, 2, 3, 5. What is the significance of that? Anybody can tell me? That will I will be more happy if you give me the answer. What is the physical significance of that expression? Already you have studied, I told everything, nothing left. Now, if I ask you f of ABC is equal to summation over M 1, 2, 3, 5,
what does it imply? What is the meaning of that expression? What is the significance of that expression? Or one question I can ask you, what is the observations, okay, or understanding after getting these expressions? Or what are the information you are getting from this expression? So I have asked so many questions. Okay. So anybody can tell me what is the information you are getting from these expressions? What are the information you are getting from this expression? Because whenever you are going to solve using KMF, you have to understand what they actually want to say. So anybody can tell me what are the information you are getting from these expressions? F of A comma B comma C is equal to summation over F 1 2 3 5. ये एक्सप्रेशन देख के तुम्हारा क्या समझ में आ रहा है और क्या इंफॉर्मेशन तुमको मिल रहा है, बोलो ना। ठीक भी हो सकता है, भूल भी हो सकता है। सर छूट रहा है वहाँ पे जो सिग्मा है उसके ऊपर आई देखिए, वो कुछ 1 2 3 4 देना होगा ना सर पहले। हाँ में सर सिग्मा के ऊपर एम के बगल में जो है उसके ऊपर सर, और कुछ भी नहीं देना पड़ेगा तब ना, क्योंकि ये भी समेशन लिख के एम दे दिया ना, इसका मतलब है M1 M2 M3 M5। Do not go for complexity. What I have told you, you follow that one. That is the correct way. Okay. F of ABC, that is equal to summation over M 1 2 3 5. So from that expression, my question is that what is the information you are getting? पहले तुम ये देखा है तो बोलो ना। Sir, it gives the information that that the mean term having M1, M2, and M3 and M5 having at least a value of 1. अच्छा, That's why written here summation M1, 2, 3, and 5. yes, those are high values, correct. And in the expression of having three variables A, B, C, बस 3 वेरिएबल का है और M1 M2 M3 M5 वो जो है वो मीन टर्म है। सो 1 पोजीशन में डेसिमल 1 पोजीशन में हाई, 2 पोजीशन में हाई है, 3 पोजीशन में हाई है एंड 5 पोजीशन में हाई है। ठीक है। सो 001 में हाई है, 010 में हाई है, 011 में हाई है एंड 101 में हाई है। ये हम लोग समझ गए। ठीक है। तो ये जो है M1 है, 1 ये डेसिमल पोजीशन है, M2 2 तो डेसिमल पोजीशन है, M3 3 का डेसिमल पोजीशन है, 5 का डेसिमल पोजीशन है। तो 5 बाइनरी क्या होगा 101 होगा, 3 का बाइनरी क्या होगा 011 होगा, 2 का क्या होगा 010 होगा और 1 के लिए क्या होगा 001। ओके, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड SOP फॉर्म, canonical form. It is in simplified form. Okay, so that's why standard soft form. Okay, now we'll move to standard post form. Now standard post, product of sum form. Okay. पॉस्ट में क्या होगा, सब में हम लोग क्या कर रहे थे, दोज आर हाई वैल्यू, we have taken only those values जो 1 था। यहाँ पे क्या होगा, we take all those values which given 0 output। ठीक है। So that's why this is derived by considering the combination for which f is equal to 0। वहां पे क्या था, f is equal to 1, फंक्शन का 1 होने से हम लोग वो टर्म्स ले रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, ये उल्टा में तो बोल रहे थे हम लोगों का
sender POS simply just the reverse of the short form. So that's why here we are taking only the terms, those terms are getting the zero values. Okay. So the expression what we've taken here, see, row 0, row 4, row 6, row 7. Go back to the truth table. देखो ये रो 0 है, रो 4 है, रो 6 है, रो 7 है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग क्या मिला? 0 0 0 0। ठीक से ध्यान से देखो, ठीक है? रो 0, ये रो 4, ये रो 6, ये रो 7। ये तुम कैसे लिखोगे? देखो रो 0 हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कैसे होगा? देखो 0 होना चाहिए यहाँ पे, तो 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1 था, इसलिए क्या 0 को हम लोग क्या लिखे थे? a बार b बार इंटू सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी। ठीक से समझ लो, दिस इज अ टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये 0 है, हम लोग 0 and those terms we call max terms. Here we told min terms, but in the case of POS, all the zero terms we call max terms, and we are writing here for that 0 a plus b plus c. देखो a plus b plus c. Now m4, move to the m4, that is your m4। ये क्या लिखोगे तुम? बोलो a बार प्लस b BC प्लस c, a बार प्लस b प्लस c। देखो वही लिखा है, a बार प्लस b प्लस c। नाउ वी मूव टू 6। क्या लिखोगे यहाँ पे? a बार प्लस b बार प्लस c, क्योंकि यहाँ पे 1 होने से बार होना चाहिए, क्योंकि हम 0 वी आर टेकिंग ओनली 0 वैल्यूज। ओके, सो 0 होने से क्या होना चाहिए? यहाँ पे a बार होना चाहिए प्लस b बार प्लस c, है कि नहीं? तो इसलिए m6 क्या होगा? a बार प्लस b बार प्लस c। देखो a बार प्लस b बार प्लस c, m6 हो गया। नाउ क्या है? m7। नाउ क्या लिखोगे? नाउ योर टर्न, बोलो m7 को हम क्या लिखेंगे? ये जो है A बार प्लस B ए बार बार प्लस बी C बार। बार प्लस सी बार। a बार प्लस b बार प्लस c बार। सो वही लिखा है a बार प्लस b बार प्लस c बार, तो m7 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कैप्स m0, m4, m6, m7। so all these terms are called max terms। okay, and this is also called conjunctive canonical form and POS। so ultimately लिखो m0 into m4 into m6 m7। so a plus b plus c, a bar plus b plus c dot a bar plus b bar plus c, and finally a bar plus b bar plus c bar। so all these terms are called, this is also sum term, this is sum term, this is sum, this is sum term, and they are in product form, this into this into this into this। so that's why this is called product of sum, and ultimately they are writing as m0 dot m4 dot m6 m7। वहां पे क्या था? प्लस 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 होके था, ठीक है? सो दैट इज इन सिंबॉलिकली वी आर राइटिंग हियर abc is equal to pi into m। लिखो द पोजीशन 0467 0467। सो कैप्शन 0467। सो जब पाई होगा दैट रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मैक्स टर्म्स। पाई ये हम लिख दिया है यहाँ पे, पाई represents the product of all max terms, these are called max terms, they are in product form m0 into m4 into m6 into m7। so and when they are summation form, that means it is a sum of product form। okay, so that is basically f of abc, and it is product of sum form, and symbolically we are writing it as pi of m0467। now what is the difference here? वहां पे क्या था? 0467 एब्सेंट था, वहां पे 0467 एब्सेंट था,
ठीक है, 1 2 3 5 है। यहाँ पे देखो ए बी सी है, तो क्या होगा, 0 से 7 तक होगा, होगा कि नहीं? ये शॉर्टकट भी रूल है, जो 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 टर्म सॉम में है और जो नहीं है वो क्या होगा, वो पॉस में होगा। दैट इज द शॉर्टकट रूल, यू प्लीज रिमेम्बर। पहले तुमको सब को देखना होगा कौन कौन सा टर्म प्रेजेंट है, और जो टर्म प्रेजेंट नहीं है वो पॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 7 तक कौन सा एब्सेंट है, देखो 0 एब्सेंट है, 1 2 3 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है और 7 नहीं है, इसलिए जो एब्सेंट है वो पॉस में चला गया। 0 4 6 7 जो है ये पॉस में चला है। So that is the relation between soft and post term. Okay. Now बोलो, ये soft स्टैंडर्ड soft और स्टैंडर्ड post में तुम्हारा कोई दिक्कत है क्या? और मीन टर्म्स क्या है, मैक्स टर्म्स क्या है, और स्टैंडर्ड soft क्या है, स्टैंडर्ड post क्या है, कैसे स्टैंडर्ड हम लोग बना रहे हैं, कैसे स्टैंडर्ड post और soft हम लोग बना रहे हैं, ये तुमको दिखना माने समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल एक दे चुका हूँ और ये बेटर नहीं। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन है f of a b c है, दैट इज इक्वल टू a बार प्लस b बार इनटू a प्लस b। ये कौन सा फॉर्म में है, ये तो कॉस फॉर्म में है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम में है। Yes, sir. बट स्टैंडर्ड नहीं है कि नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं है, नहीं है। कारण यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे c नहीं है, सी नहीं है। बोथ द टर्म में c नहीं है, तो तुमको c लाना जरूरी है। नाउ सी देखो, a प्लस बी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस 0 करोगे, यहाँ पे a प्लस बी प्लस 0 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 का ऐड में 0 ही होगा। तो इसलिए क्या लिखा गया यहाँ पे, a बार प्लस बी बार प्लस सी सी बार, यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी सी बार। ओके, तो ये तुम दिमाग में रखो, जब पॉस को स्टैंडर्ड पॉस में लाना है तो तुम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टर्म हो, जहां में जो टर्म नहीं है उसका बदले में सी सी बार, बी नहीं तो बी बी बार है, ए नहीं है तो ए बार, ई नहीं तो ई बार, ये ऐड करना चाहिए। और सब में क्या करोगे, ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार, सी प्लस सी बार, क्योंकि प्रोडक्ट होता है। सो ए प्लस ए बार का मतलब 1 है, बी प्लस बी बार का मतलब 1 है, सी प्लस सी बार का मतलब 1 है, इसलिए वहाँ पे हम लोग ए प्लस ए बार करके और बी प्लस बी बार करके और सी प्लस सी बार करके हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सी सी बार लिख रहे हैं, क्योंकि सी सी बार का वैल्यू 0 ना। वो जो प्रॉब्लम मैं तुमको बोल चुके हूँ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी होगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी इनटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार हो जाएगा। तो ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो ठीक से, ठीक ढंग से सोचो, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि सी सी बार प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको तुम सेपरेट करो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी इनटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया ना। हम लोग धीरे धीरे ये जो स्टैंडर्ड टॉप स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, इसलिए हम लोग धीरे धीरे कार्नोमेन में जाएंगे, कार्नोमेन ये है। ओके, कार्नोमेन इज द one way over there you can simplify the long Boolean expressions into a shorter form or the minimum form. You can, if you solve the table very accurately,
without mistake, then obviously KMF will give you the ultimate solution, ultimate simplification of the Boolean expressions. So that you have to understand and you have to solve KMF. I will teach you 2 variable KMF, 3 variable KMF, 4 variable KMF, and ultimately 5 variable KMF. Okay. So and all the variables 2, 3, 4, 5 तुमको प्रैक्टिस बहुत करना है। लाइव क्लास में ही कराएंगे हम, कुछ प्रॉब्लम दूंगा, तुम सॉल्व करोगे और मैं व्हाट्सएप में तुम दोगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल दिए हैं। दिस इज शोइंग बेसिकली 2 वेरिएबल KMF द फिगर। ओके, दैट इज 3 वेरिएबल का फिगर है, मैथ है, स्क्वायर बॉक्स है, एंड दिस इज 4 वेरिएबल का है। ये जो बॉक्स है, ईच एंड एवरी स्क्वायर जो बॉक्स है, इसको एक एक करके सेल कहते हैं। 4 सेल यार, for 3 variable के लिए 8 cells are there, and for 4 variable के लिए 16 cells are there. Okay, 2 variable, as already you people know that 2 variable लेके हम लोग 4 combination से, इसलिए 4 cells है। कहाँ तक है? 0 से 3 था। For 2 variables we are having 4 combinations starting from 0 to 3. So that's why 0, 1, 2, 3 कैसे हम लोग 0 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, वो मैं बताऊंगा। तो ये A and B है, ये A है, B है। Why we are writing A and B? Because they are the variables. यहाँ पे देखो A, B, C, because ये 3 variables है। यहाँ पे हम लोग A, B, C, D, that means it is 4 variables. So what we are writing here, they are mentioning, indicating the variables. ना यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? 0, ये 0 कॉलम है, ये 1 का कॉलम है। सिंपली यहाँ पे 0 का रो है, 1 का रो है। सो 2 वेरिएबल्स, आइदर 0 और 1, दैट्स व्हाई 2 rows 2 columns। तो यहाँ पे देखो 0, 0, सो इसलिए 0, 0 में लिख दिया। 0, 1, सो 0, 1, 1 यहाँ पे 0, सो 1, 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, so इस सेल का क्या होगा? 1, 1 होगा। सो 0, 0 का मतलब क्या है? 0 है। 0, 1 का मतलब बाय डेसिमल में क्या है? 1 है। 1, 0 का डेसिमल में क्या है? 2 है। 1, 1 का क्या है ना? 3 है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। सो ये 0 सेल है, इस सेल का नाम है 1, दिस सेल का नाम है 2, दिस सेल का नाम है 3। लाइकली फॉर 3 वेरिएबल्स सी, ये क्या होगा? 3 वेरिएबल यहाँ पे क्या है? ए है, तो ए है इसलिए 0 और 1 होगा। यहाँ पे बी है, बी एंड सी है, सो 2 वेरिएबल में कितना होगा? 4 कॉम्बिनेशंस होगा। सो 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। हैव यू एनी डाउट यहाँ पे? No sir. नो, 1 तो होना ही चाहिए बाबू। ठीक से देखो, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। देखो 1 मैंने देखो देखो, 1 1 क्वेश्चन 1 सर may come in your mind। सर बोलो। सर आप जहाँ पे बार है सर, वहाँ पर 0 लिख रहा है, लेकिन वहाँ पे ट्रूथ टेबल में जहाँ पे बार था वहाँ पे 1 लिख रहे थे सर। नहीं बाबू, जब 0 होगा ना सब में, है, ये हम लोग सब में बोल रहा हूँ, सब जब 0 होगा सब में, सम ऑफ प्रोडक्ट में, है, मीन टर्म में, वो 0 के बदले में बार होगा। ठीक है, 0 के बदले में बार होगा। ये देखो बी बार 0 है, वो ट्रूथ टेबल में हम लोग वही कर रहे थे, 0 के लिए बार कर रहे हैं। देखो ना, गो बैक टू द ट्रूथ टेबल, देखो ये क्या है? 0 है, तो क्या लिखे हैं? जी ए बार बी बार सी लिखा है ना, ए बार बी बार सी बाबू। ये देखो यहाँ पे भी देखो, ए बार बी सी बार, देखो ए बार बी सी बार। तुम एक ही चीज दिमाग में रखो, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो तुम्हारा फंक्शन में 1 होगा तो टर्म्स आएगा। ठीक है, और जो 0 होगा वो पॉज में चला जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है,
और सॉम में वो मीन टर्म्स में वो जो बार होगा माने जीरो होगा वो बार हो जाएगा, लेकिन पॉस में और मैक्स टर्म में जो 1 होगा वो बार हो जाएगा। तो इसलिए डोंट मिक्स अप, यू ओनली रिमेंबर एनी वन सॉप, और सॉप का जो उल्टा है वो पॉस है। सो इसलिए मैं सॉप को मैं बोल के मैं थक गया हूँ। जो जीरो होगा वो बार होगा, and if the functions are one, you consider all those terms, all those mean terms. Okay, ना बोलो कुछ प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे हम लोग ऑल द कॉम्बिनेशन देखा रहा हूँ। ये जीरो जीरो है, जीरो वन है, वन वन है, वन जीरो है। मेरा बात जो है यहाँ पे तुम लोग का एक क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं आएगा तो हम खुद में बोल रहा हूँ। देखो जीरो जीरो है, जीरो वन है, ये वन क्या होगा रे बाबू, कैसे होगा? जीरो वन, ये वन जीरो होता, ये वन वन होता ना, सीक्वेंस तो वही है, जीरो वन टू थ्री, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जीरो वन थ्री टू। देखो ऊपर में जीरो 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 वन, फिर यहाँ पे क्या होता, वन जीरो होता ना, फिर यहाँ पे वन वन होता, क्यों? सुनाई दे रहा है ना? देखो यहाँ पे यस जीरो सर। है, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे वन 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 जीरो लिख दिया। मैं गलत लिख दिया क्या? नहीं सर, ऊपर बीसी है ना। नो सर, क्योंकि अरे वहाँ ए बार पगला, बी वो सी तो बार। मैं बीसी क्यों लिखा है, ये हम लोग वन वन लिखे हैं इसलिए बीसी, बीसी बीसी ये जो है वो बाद में आया, पहले तो ये आया। एक लोग कोई एक लोग स्क्रीनशॉट ले लो ना। तो ये जो है देखो, मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस है, जीरो 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 है, वन है, देन थ्री है, देन टू है, तो ये उल्टा हो गया ना, जीरो वन टू थ्री होने से पहले वो क्या हो गया, जीरो वन थ्री टू हो गया। तो मैं कोई भूल तो नहीं लिख दिया ना, ये मैं बोल रहा हूँ। ये तो डाउट तुमको होना ही चाहिए, ये सर क्यों इसको लिख दिया, क्योंकि जीरो है, उसके बाद वन है, उसके बाद टू होना चाहिए, देन थ्री होगा, लेकिन सर ने तो लिख दिया जीरो वन थ्री टू, है कि नहीं? तुम्हारे पास ये डाउट है कि नहीं? डाउट है तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं चला जाऊंगा फिर नेक्स्ट बात। सर बताइए। है सर, और नीचे भी वैसा ही आपकी 4 5। ये तुमको बाद में पता चलता, मैं नहीं बोलता तो घर में जब तुम प्रैक्टिस करते ना, जी सर किस सर तो भूल चूक सिखा दिया हम लोगों का, ठीक है, सर कभी नहीं भूल बोलेगा, ठीक है। देखो ये जो कारण है डेफिनेटली इंटरेस्टिंग कारण। देखो जीरो जीरो, ठीक है, जीरो वन, तो ये जो है जीरो जीरो से जीरो वन, ये देखो सिंगल बीट चेंज है, जीरो जीरो कांस्टेंट हो गया, बट ये जो जीरो है, जीरो चेंज करके वन हो गया, तो सिंगल बीट चेंज हुआ, है कि नहीं? नाउ जीरो वन वन वन, कितना बीट चेंज हुआ, जीरो वन हो गया, बट ये जो वन था ये वन था, सो सिंगल बीट ही चेंज हुआ इधर भी। नाउ वन 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 जीरो, देखो ये वन सेम हो गया, बट ये जो एल एस भी है वन, ये एल एस भी जीरो हो गया, तो सिंगल बीट चेंज हो गया ना। इधर देखो वन जीरो जीरो जीरो, ये रोटेशन भी होगा, जीरो जीरो वन जीरो, इधर कितना बिट चेंज हो गया, जीरो वन हो गया, सो ये एमएस भी चेंज हो गया, बट एलएस भी जीरो, एलएस भी जीरो है, नहीं चेंज हुआ। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये तुम्हारा इंडिविजुअल जो टर्म्स है, कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है, सिंगल बीट चेंज हो रहा है। अब जब तुम जीरो वन के बाद वन जीरो करोगे तो कितना बिट चेंज हो गया बाबू, जीरो वन से वन जीरो हो गया, कितना बिट चेंज हो गया, कॉपी में लिखो ना, जीरो वन देन वन जीरो, देखो टू बिट चेंज हो गया। यस सर। जीरो वन है और वन जीरो जब होता है, यहाँ पे वन जीरो होने से क्या होता, जीरो चेंज होके वन हो गया, वन चेंज हो गए से अब जीरो हो गया, तो इसलिए बोथ द बीट्स हैविंग चेंज, सो दैट इज नॉट अलाउड। So each and individual term, consecutive terms, they should have only single bit change. Multiple bit change is not allowed. इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इधर,
0 0 0 1 1 1 1 0 करके लिख दिया। क्यों किया देखो, इधर फोर वेरिएबल में भी हम लोग वही कर दिया, 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर भी 0 0 0 1 1 1 1 0। तो हम लोग ये जो है हम लोग ये घर बना रहे हैं, बाद में हम इसको फिल करेंगे। एंड वो जो प्रोसेस है केमेप का वो हम करेंगे, प्रैक्टिस बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे, बहुत सारा, केमेप में बहुत टाइम लगेगा। तो ये देखो ये 0 0 है, तो 0 0 0 ये घर का नेम क्या 0 है, ये 1 है ना, ये देखो 0 1 1 3 2 हो गया, 0 1 2 3 नहीं है, 0 1 3 2 है, इसलिए ये चेंज हो गया। ये जो चेंज हो गया इसलिए ये भी चेंज हो गया, 3 2 हो गया, 4 5 7 6 नॉट 6 7। तो ये 8 सेल होगा, 3 वेरिएबल के लिए 8 सेल होगा। सिमिलरली 4 वेरिएबल के लिए तुम्हारा 16 घर होगा, ये 0 है 1 है 3 2 4 5 7 6 8 9, देखो इधर भी एक घर चेंज हो गया, 8 9 11 10 12 13 15 14 हो गया, क्योंकि इधर भी चेंज है इधर भी चेंज है, इसलिए कॉलम वाइज भी चेंज है, रो वाइज भी चेंज है। कॉलम वाइज भी देखो यहाँ पे चेंज है 2 3 6 7 10 11 14 15, ये कॉलम वाइज चेंज है। लेकिन इधर क्या है 0 1 3 2 4 5 6 7 6 7, देन इधर 8 9 होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ शिफ्ट हो गया 8 9 10 11 12 13 14 15 ड्यू टू सेम रीजन, ड्यू टू 1 बिट चेंज होने के लिए हम लोग 1 1 1 0 कर दिया था, 1 1 1 0 कर दिया, इसलिए इधर चेंज हो गया इधर भी चेंज हो गया। सो दैट इज द मेन रीजन। अब तो दिस क्लियर केमेप हम लोग कैसे बना रहे हैं घर को, जो बॉक्स है और ये उसका सर हमेशा सिंगल बीट Yes, ही आगे sir. बढ़ते हैं हम, हाँ बोलो। ये हमेशा सिंगल सिंगल बीट को ही आगे बढ़ते जाना है। हाँ सिंगल बिट की आगे बढ़ते हैं, 2 बिट चेंज एक साथ में नहीं अलाउड है, ठीक है ना बाबू। तो ये भी Yes, sir. एक, ये लेस देन 1 मिनट है, ये भी खत्म हो जाएगा, फिर भी हम ज्वाइन करेंगे, उसके बाद 10 मिनट 10 15 मिनट लगेगा, उसके बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है। तुम बोलोगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो इंटरेस्ट है, तो सारा दिन बोलोगे तो हम सारा दिन ले लेंगे। तो ये लेस देन 1 मिनट है, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे, then we'll decide whether we will go for continue or we'll stop, okay। तो समझ में आ रहा है ना सब? Yes, sir. यस सर। ओके, नहीं समझ में नहीं आएगा तो तुम बोलोगे, नहीं बोलने से तो हमको तो पता नहीं चलेगा ना, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू हैव एनी डाउट तो यू हैव टू से मी।